चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड previously we studied about physical changes, chemical changes, chemical reaction and chemical equation. Afterwards we learn about some of the symbols those are used to write the chemical equation. हमें कोई भी chemical equation कैसे लिखनी है, what is the definition of chemical equation. So all the symbols, signs and rules, regulations we explained about how to write the chemical equations that we have learned earlier. If we have any problem regarding to that, please ask me separately. Now today we are going to start with types of chemical reactions. Types of chemical reactions में देखो, हमने जो लास्ट टाइम स्टडीज किया था उसमें केमिकल रिएक्शंस तो ठीक है, आपको ये भी बताया कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद types of chemical reactions. Before that we told you about the chemical reaction only. Chemical reaction क्या होती है, उसको how to represent we have discussed earlier. Types of chemical reactions में क्या क्या different type के chemical reactions हो सकते हैं, तो that we have to understand from here. Here for your convenience I have already written them down. So types of chemical reactions, the first is combination reactions. I will explain it one by one. The combination reactions, decomposition reaction. Decomposition reactions में पहले thermal decomposition, electrical decomposition and photolysis or photo decomposition. Then coming over to displacement reaction. इसमें भी दो different type के reactions हैं. The one is single displacement and double displacement. Next one is oxidation reaction and reduction reaction. Oxidation and reduction reactions, redox reactions, सारी one by one explain करेंगे. Then endothermic and exothermic reactions. These all types of chemical reactions we have to learn about. So combination reactions. Combination reactions, as the name suggests, combinations means combine. That means such type of chemical reactions where two or more than two reactants are combined to form a product. That means दो different substance मिलके या दो different reactants मिलकर एक नए प्रॉपर्टी के साथ एक प्रोडक्ट बनाएंगे. दोज आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मींस इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, राइट. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में लेट इट राइट डाउन द डेफिनेशन. चलिए, फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज द मेजर एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था पहले. जो एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शॉर्ट नोट्स में और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है. दैट इज क्विक लाइन को जब वाटर से ट्रीट करेंगे देन व्हाट विल हैपन. सो हमें ये कंप्लीट रिएक्शंस रखनी है. This complete reactions we have to learn, right? Next example ले लो. Simple combination reaction में ही we are taking another example, burning of coal. Coal कल भी हमने डिस्कस किया था. That is carbon. When carbon reacts with oxygen, then we got carbon dioxide. दो
डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं एक कंपाउंड बनाने। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन वन कंबाइन विद ऑक्सीजन, हियर आल्सो एक प्रोडक्ट, एक substance hydrogen है, the next one is oxygen, those are going to combine and forming water. In the same way formation of HCl, HCl में देखो यहाँ पर मैंने लिखा है HCl, HCl, क्या डिफरेंस है इसमें? What is the problem over here? The problem is कि हाइड्रोजन कभी भी मोनो एटॉमिक नहीं होता, दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। Now this is hydrogen. In the same way, even the chlorine is diatomic. So now it is hydrogen, now it is chlorine. Though molecules of HCl we are going to combine. Ultimately, one molecule of hydrogen and one molecule of chlorine when combined, and we got the two molecules of hydrochloric acid, right? देखिए, most of the combination reactions are exothermic. अभी तक हमने combination reactions पढ़े, इसके एग्जाम्पल पढ़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि not all but most of the chemical reactions are exothermic. चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने सारे एग्जांपल्स पढ़े। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, सभी में नहीं, नॉट ऑल, राइट, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट लिबरेट होगी। प्रीवियस रिएक्शन हमने पढ़ी थी, व्हेन quicklime reacted with water, then we got slakelime and heat, right? इसमें देखो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन वन कंबाइनिंग, जब कार्बन की बर्निंग होगी, कोल की बर्निंग होगी, then definitely we are going to obtain the heat. So in such a way, most of the combination reactions are exothermic reactions, but ध्यान रखने की बात ये है, most of the combination reactions, not all, right? Next we start with thermal, next we start with decomposition reaction. पहले try to understand over here decomposition reactions. Decomposition reactions combination reactions के exactly opposite, that means यहाँ combine कर रहे हैं या decompose करेंगे, तो what should be the definition accordingly? इसमें कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स और सब्सटेंस वर यूज्ड टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अ सिंगल रिएक्टेंट और द सिंगल सब्सटेंस इज गोइंग टू स्प्लिट और गोइंग टू ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। इसको हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को तीन पार्ट्स में। पहले तो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, दैट इज क्लियर कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट करके दो या दो से ज्यादा पार्ट बनाए, ठीक। अब इसको तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस। हाउ, देखो डिकम्पोजिशन अपने आप नहीं होगा, या तो उसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, या फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मींस, फोटो मींस लाइट एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन बिकॉज ऑफ लाइट, सनलाइट में, तो ब्रेकडाउन बिकॉज ऑफ लाइट। यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज्ड टू कंप्लीट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन are the criteria by which we can divide decomposition reactions into thermal, electrical and photolysis. So इसको
अब हम सेपरेटली एक बार स्टडी करें। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कंसीडर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिफोर दैट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम स्टार्ट करें उससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का दो मेजर चीजें ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मींस हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी डेफिनेटली हमने डिस्कस किया है वेदर दोज आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां एनर्जी चाहिए, वहां हीट एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसमें हमें लाइट एनर्जी चाहिए। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो नॉर्मली बुक्स में नहीं मिल पाता है बट 1 मार्क्स का क्विक असेसिंग क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी। सो दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ आवर फूड इज ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? इसमें देखिए जो स्टार्च है वो लोअर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट है वो लोअर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। हायर प्रोडक्ट से लोअर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मोरओवर ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन भी होता है। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन C6H12O6 और इसका ब्रेकडाउन होकर के हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज आल्सो ए टाइप ऑफ decomposition reaction। digestion of food is also a type of decomposition reaction। ये 1 मार्क्स का या MCQs के क्वेश्चंस में अराइज हो सकता है। चलिए नाउ कम ओवर टू थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। So a type of chemical, the type of decomposition reaction where heat energy is required to decompose one reactant to one or to 2 or more products। See, हमने combination reactions में जो examples पढ़े थे उसका ही अपोज अल्टीमेटली हमें मिला था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड करेंगे देन इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मींस क्विक लाइम में वापस से कन्वर्ट कर। कैल्शियम कार्बोनेट मींस ये क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज द स्लेट लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन आफ्टर गेटिंग द हीट इज कन्वर्टिंग इनटू क्विक लाइम with the release of carbon dioxide। सी जब हमने सिंबल्स यूज किए थे वहां ये सिंबल हम यूज कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, तो गैस की लिबरेशन के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते। नाउ फेरस सल्फेट into 7H2 मींस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से स्टार करके अंडरलाइन कर लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं, देखिए ये लिखा है आयरन और सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ये डॉट लगाकर H2 वाला है, वाटर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स के हैं, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये ग्रीन कलर का होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट्स, ये ग्रीन कलर का होता है। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, इसका कलर भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो मेरे प्रोनाउंसिएशंस को, मेरे लेक्चर्स को नोट्स के साथ करेक्ट करते जाना, यू विल गेट क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी रिएक्शन। चलिए, तो ग्रीन कलर्ड फेरस, ग्रीन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट
व्हेन हीटेड हमें मिलेगा फेरस सल्फेट और वाटर इसमें से लिबरेट आउट हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, फेरस सल्फेट मिलेगा। फेरस सल्फेट को वो जब फर्दर हीट करेंगे देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, then sulfur dioxide gas and sulfur trioxide gas। फिर रिपीट कर रहा हूं इसे क्योंकि ये रिएक्शंस कई बार पूछी गई है और इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है बच्चों के लिए कि जल्दी से क्लियर नहीं होती और बहुत सिंपल वे में नहीं पूछी। जो ये फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का, ये फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का। चलिए आपके लिए कन्वीनियंस के लिए मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूं, दिस इज व्हाइट कलर एंड दिस इज रेड, ठीक। और ये आपको मैं बता चुका हूं, दिस इज ग्रीन कलर। तो आपको जो रिएक्शंस पूछते हैं उसमें नाम नहीं बोलेंगे, उसमें डायरेक्ट पूछेंगे व्हेन ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड इज हीटेड, व्हेन ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड इज हीटेड देन अल्टीमेटली a red colored product is obtained and some of the gases are evolved। गैसेस में भी आपको नाम नहीं देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्मेल बता देंगे, रॉटन एग्स सड़े हुए अंडे के जैसी स्मेल होती है, तो रॉटन एग्स की स्मेल लिबरेट होगी। तो अब क्वेश्चन क्या बना, व्हेन ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड इज हीटेड देन ए रेड कलर्ड ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एंड रॉटन एग स्मेल इज लिबरेटेड अप। ये क्वेश्चन होगा तो अब आपको ये पूरी इक्वेशन नरेट करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में बना लेना पड़ेगा कि ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या है, दैट इज फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट विल कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट व्हिच इज व्हाइट कलर। फर्दर रिएक्शन हमें शो करनी पड़ेगी, व्हाइट कलर फेरस सल्फेट इज हीटेड अगेन to get ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ये दोनों गैसेस कलरलेस है, both are colorless but rotten egg की स्मेल इसमें, ठीक। टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट when it is heated converted into zinc oxide and again carbon dioxide gas is liberated out। In the same way lead nitrate, Pb is the symbol of lead, NO3 nitrate, तो lead nitrate Pb NO3 whole twice, तो होल थ्राइस क्यों, होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि NO3 की वैलेंसी यहाँ पर 1 है, लेड की वैलेंसी यहाँ 2 कंसीडर की है, सो PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे वी आर गोइंग टू ऑब्टेन लेड ऑक्साइड 4NO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक। अब इनके डिफरेंट ये सारे जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, these all are decomposition types of reactions। इनके कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कलर्स को लेकर पूछते हैं, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स का नाम कई बार इंडिकेट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपाउंड का कलर बता देंगे, फ्रॉम दैट यू हैव टू जज अबाउट द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट अप विद द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और द इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, सो द सेकेंड टाइप ऑफ decomposition reaction is electrolysis और electrochemical reactions। स्प्लिट, यहां पर क्या होगा कि
इलेक्ट्रिकल करंट जब किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन में पास करेंगे तो सब्सटेंस और रिएक्टेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस एक पूरी डिफरेंट प्रोसेस है। ये आपको सेपरेटली इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में सेपरेटली बताएंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और लिक्विड के साथ में सॉल्यूशंस के साथ में इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं। ये पूरी एक डिफरेंट प्रोसेस है। एनोड और कैथोड दो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, राइट। अभी सिर्फ इतना समझो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास करने की वजह से एक रिएक्टेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में ये वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई किया। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब सी यहाँ वी हैव रिटन स्पेशली H2SO4, ये एरो के साथ ही है। H2SO4 हमने इसमें ऐड किया है। सो H2SO4 इज एडेड एज कैटलिस्ट। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, यानी प्योर वाटर में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कब करेगा? जब वी हैव फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। और प्योर वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में नहीं। दैट्स व्हाई वी यूज टू ऐड H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से हमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब होगी देन ओनली वी कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड एज कैटलिस्ट। कोई ये पूरी रिएक्शंस आपने पूछने नहीं जा रहा, बट द इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इज दिस व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस का नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, decomposition of molten NaCl. See again the same thing we are going to explain. NaCl is sodium chloride का electrical decomposition हमने करना है। Why it is written molten? This has the significance. See, पहले decomposition करके देख लो। Twice NaCl को इलेक्ट्रिकल करंट दिया, ultimately this is converted into sodium and chloride. See, only molten sodium chloride can undergo electrical decomposition. Solid NaCl don't proceed the reaction. Why? Because molten state में ही free electrons होंगे और ये free electrons are responsible for the electrical conductivity. तभी हमारी कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शंस कंप्लीट हो। That's why इन दोनों रिएक्शंस में सिमिलरिटी क्या है? इसमें molten state आएगी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें molten state of NaCl प्रोवाइड करेंगे और इस रिएक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर provided by the H2SO4. अभी इतना हम दो एग्जांपल्स कर लिए। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट द फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।